Thank you so much. Everyone, please be seated. Today, amongst us, we have Master Chef Kunal Kapoor, and we are really glad and we are proud to have him here. Today, Master Chef Kunal Kapoor will be addressing to all of you with his inspiring life, whatever his activities, his experiences in his life, so that he can motivate you, he can inspire you with his great words, and so that you can. And yes, students, one more thing. You guys have lots and lots of questions in your mind, right? After you get home, lots of questions might arise in your mind that I could have asked this question, ये question पूछने से अच्छा होता, ऐसा उन्होंने क्या किया, right? So please come up and ask questions to our sir, our dear sir, Mr. Kunal Kapoor. He will be glad to answer all of you with his experience, and he has been here and he has been inspiring our students for many years. And so please, yes, may I welcome Master Chef Kunal Kapoor on the dais, please. Thank you. Hi. Good afternoon, everybody. Lovely. Love the energy. First day in college? Second? ठीक है. 24 hours पूरे हो गए बस. Very good. कैसा लग रहा है? हाँ, very nice. अच्छा लगना चाहिए. The best part of life is not when you get older or any younger. It's the best part when you join college. Ask any one of us. College days are the best. You know why? Because you're no more a kid. मम्मी से पापा से पूछ के जैसे हम करते थे ना in the school, it's no more. You're considered an adult. I'm sure everybody's crossed 18, right? So you're an adult. So you make your own decisions, good, bad, right, wrong. So it's a very, very important stage of your life, and you'll make some very, very good friends in your college career, which will remain your friends right till the end. On that note, thank you so much for such a warm welcome. And आप लोगों की जर्नी अभी शुरू हुई है. You're just starting. I started almost 24 years, no, how much? 26 years back. So it's been 26 years. In fact, 26 years back, I was sitting right where you are right now. And 26 years back, there are very limited hotels and opportunity for anybody who joins hotel management, whether it was kitchen or service or any other stream within the hotel. I'm good with this. But things have changed now. There's a whole lot of opportunity. When I say there is a whole lot of opportunity, means opportunity hai. You have to grab it. You have to prepare yourself to jump high and grab it. When you pass out of college, आपके लिए ऐसा नहीं होगा कि okay, we have a job for you, please take it. You have to grab that job by working hard towards it. Look, I can keep going on and talking about all of this. I would like to hear any questions that you have, or you might have, or any experiences that you'd like to share about the industry. I'll be more than happy, rather than me giving a nice tall speech and boring you guys. I'm sure evening होगी फिर सब hostel है? सब hostel में हो ना? अच्छा सब नहीं है. PG हो गए, locals हो गए, शाम को सारी मंडली बैठेगी ना कहीं घूमने जब जाओगे ना. Do that. Enjoy your time. Work hard. Enjoy harder. Always remember. और ये होटेलियर का मंत्र है. बहुत अच्छे मेहनत से काम करो और उतनी मेहनत और शिद्दत से enjoy भी करो life. That's how it goes hand in glove. So somebody has any question to ask? I'm sure काफ़ी doubts होंगे. Yeah, go ahead. Who can give him the microphone?
Hello. Yeah, good afternoon, sir. I'm Shambhu Bhattacharya. Well, I want to say that you have been in this industry for many years. So when you were a freshers, okay, when you just started working in this field, what were your expectations? How much did you aspire? How much did you expect from this industry? And now where you are standing, what do you think how much you have achieved? What were the, like struggles, the efforts that you have put that made you, stand out in this industry more than others? What's your name? Shambhu Bhattacharya. Where are you from? I'm from Kolkata. Kolkata. Okay, sit down. I've understood. So, Acha, tell you very interesting. All of you, before joining, you knew or you must have heard what is hotel management. Yes. You all knew? Yes, sir. Is there somebody who didn't knew? कि होटल मैनेजमेंट होता है क्या? You didn't know? अच्छा, बाल ठीक कर रहे थे. Okay. Now let me tell you, I did not know what is hotel management when I joined hotel management. Because there were not many hotels. It wasn't a career that was, people would say कि भाई hotel management कर लो. I did it because a friend of mine was doing it. It was that very simple. I didn't know what, he said, oh, hotel में job लग जाती है. I was like, okay, let's try. So I was very fluid. I was like bindas. Like most of you maybe. A lot of you are better off than me. You know what you want to do. There is a career path. उस वक्त शेफ वर्ड ही नहीं पता होता था मैं कि शेफ क्या होता है. हम तो कुक ही बोलते हैं, जो खाना बनाता है कुक, कुकर. जो वर्क करता है वर्कर है, टीच करता है वो टीचर है, ठीक है. जो इंजन बनाता है वो इंजीनियर है, राइट. तो वैसे जो कुक करता है वो कुकर है. I know it was stupid, but that's what we thought. So you're answering your question. When I joined, I was trying to escape. I was trying to escape my dad because he wanted me to become a banker, and I didn't want to get into banking. तो मुझे पता नहीं था. मेरे दोस्त ने कहा मैं होटल मैनेजमेंट कर रहा हूँ. मतलब क्या होता है उसके अंदर? क्या 3 साल कॉलेज होता है फिर होटल में नौकरी लग जाती है. मतलब उसका क्राइटेरिया क्या है? कह रहा दैट्स द बेस्ट पार्ट. मतलब तैयारी व्यारी नहीं करनी पड़ेगी. 90% 96% लाने होते हैं ना, जैसे बीकॉम में आपको एडमिशन चाहिए उसमें. ये तो तुम्हारे वाली बात बोल रहा हूँ. कोई 96% वाला है इधर? नहीं है ना? हाँ, एक तो हमेशा निकलते हैं. कोई बात नहीं, देन यूर फैमिली. मैं भी तुम्हारे साथ. 93 हम बोले ना, एक दो निकलते हैं. एक दो निकलते हैं. यू नो दैट्स द ब्यूटी अबाउट होटल मैनेजमेंट. जब आपने होटल मैनेजमेंट के इंटरव्यू दिया था, किसी ने पूछा था आपके कितने परसेंटेज आई है? हाँ, क्या पूछा था? पास हो या फेल? 12th का रिजल्ट क्या था उसकी शीट लगा दो, मार्कशीट लगा दो और वो पास सर्टिफिकेट. हाँ जी, क्या 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 बोल रहे? पासिंग मार्क्स कितने? हाँ, 33 वाला है तो सबसे अच्छा, बहुत आगे जाएगा यहाँ पे. कोई है 33 वाला? कोई है 33 वाला? हाँ, अच्छा 40 वाला. शर्म आ रही है ना. 33 आए थे? हैं? साइंस स्टूडेंट? साइंस में 33? ठीक है. दिमाग वाले सब्जेक्टों में 33. वेरी गुड. अच्छा, I'll tell you what happens. What happens is, आपके ना मार्क्स आर इम्पॉर्टेंट एज यू स्टडिंग इन स्कूल. बट आप देखोगे आपने बचपन में ऐसे कई सब्जेक्ट पढ़े थे जो अब कोई पूछता भी नहीं. एज यू कम टू 12th, मॉरल साइंस है, इंग्लिश है, हिंदी है, यू नो, सिविक्स है, हिस्ट्री है, बायोलॉजी है. गाइस, बी विद मी, राइट? लेकिन ये मार्क्स की वैल्यू अलग अलग स्ट्रीम्स हैं जहाँ पर वैल्यू है. होटल मैनेजमेंट इज़ अ सर्विस ओरिएंटेड फील्ड.
सर्विस ओरिएंटेड फील्ड के अंदर व्हाट काउंट्स इज योर प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड आपका स्किल. अगर मैं गेस्ट हूँ और मैं सीढ़ी उतर रहा हूँ और मेरे को डिफ़िकल्टी हो रही है और आप वहाँ काम करते हैं, चाहे शेफ़ हैं, मैनेजर हैं, कुछ भी हैं, और आपको दिख रहा है कि यार उसको थोड़ी दिक्कत हो रही है, वो हमारे महंगे 5 स्टार होटल में रह रहा है, मे बी ही नीड्स अ चेयर, मे बी नीड्स अ लिटिल हेल्प. वो कोई थ्योरी नहीं पढ़ा सकती. दैट्स कॉल्ड प्रेजेंस ऑफ माइंड. सो सर्विस इंडस्ट्री नीड्स क्रिएटिव पीपल, नीड्स पीपल हु हैव प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड विलिंगनेस टू एक्ट. एक होता है देख रहे हैं, हाँ जब गिर जाएगा ना तब उठाऊंगा, और एक होते अरे द गेस्ट नीड समथिंग, क्विकली गो हेल्प हिम विद अ चेयर और होल्ड हिज हैंड एंड आस्क हिम इफ ही शी इज कंफर्टेबल. सो ये होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड एक्टिंग ऑन इट, द करेज टू एक्ट ऑन व्हेन यू सी समथिंग एंड सॉर्ट इट. ये आपको कोई चीज़ नहीं पढ़ा सकती. नंबर जो थे 12वीं तक जो था वो आपके काम आए, आ गया जितना आना था. Once you are in hotel management, nobody will care how much you get. Even in 3-4 years, whether you are 33 or 93, if I am coming to a college to recruit you, I won't even ask. It's not about scoring in college. I know कई लोग पीछे बैक बेंचर सारे बोल रहे हैं बल्ले बल्ले यहाँ तो एंजॉय करेंगे. जब 33 में भी गाड़ी लग जाएगी, नदी पार कर लेगा बंदा, बेड़ा पार हो जाएगा, तो फिर पढ़ना क्यों, है ना. ये मत करना. मेहनत बड़ी इंपॉर्टेंट है. आप अब जो तुम 3-4 साल सीखोगे ना, वो तुम्हारी लाइफ डिफाइन करेगा. अगर तुमने 4 साल मस्ती करी तो पूरी जिंदगी मस्ती करोगे जब तक तुम्हारे मॉम डैड तुमको मस्ती करा सकते हैं. ये 4 साल अच्छे से पढ़ोगे. प्रूव नहीं करना लिख लिख के आंसर कि भाई 100 में से 100 आ गए तो मतलब तुम्हें आता है. यूजुअली जो 100 में से 100 लाता है उसको नौकरी नहीं मिलती. बिकॉज इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू नो एंड व्हाट यू कैन राइट, इट्स अबाउट कॉन्फिडेंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड, कम्युनिकेशन, विलिंगनेस टू डू, विलिंगनेस टू पुट इन लॉन्ग आवर्स. जब तुम इंडस्ट्री में जाओगे बीच में ना, अभी 1 साल बाद ना, अब शायद थोड़ा चेंज हो गया है, हर साल 2 महीने 3 महीने आप होटल में ट्रेनिंग करने जाते हो. तो वहाँ पर आपकी फेवरेट कौन है? दादी किसकी फेवरेट है? दादी, ग्रैंड मदर किसकी फेवरेट है? वेरी गुड. नानी किसकी फेवरेट है? हाँ, दादी और नानी याद आ जाएगी. जिन्होंने हाथ खड़े कर रहे हैं याद रखना, नानी और दादी सब याद आ जाएंगे जब 12-12 घंटे 16-16 घंटे काम करना होगा. बट मेरी एक बात ना, वो कहते हैं ना, मेरी मॉम यूज्ड टू टेल मी, शी इज़ अ टिपिकल पंजाबी, दैट इफ़ यू वांट टू रिमेंबर समथिंग ना, अब पुराने ज़माने में क्या होता ना, पुराना ज़माना ही था मेरा, मैं जब कहीं पे भी जाता था, मैं मॉम यूज्ड टू आयन अ हैंकरचिफ एंड गिव इट टू मी. अब तो कोई लड़का कैरी करता है हैंकरचिफ? हाँ, एक ही दो के पास है, 4, 6, 8 बस. अब सबके पास हैंकरचिफ आ गए. तो शी यूज्ड टू गिव मी, कहती है कुणाल अगर कोई चीज़ याद करनी है ना, जस्ट टाई अ नॉट ऑन वन एंड, इट रिमाइंड यू दैट यू हैव टू रिमेंबर समथिंग. तो मुझे बोलती रुमाल में गांठ बांध ले. दीज आर माई पेरेंट्स एंड आई एम व्हाट 18 व्हेन आई एम गोइंग टू फॉर माई दीज व्हाट डू यू कॉल, आई वाज 17 व्हेन आई वाज गोइंग फॉर माई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग. आई वाज वेरी यंग, 17. दे सेड बेटा इफ दे आस्क यू टू वर्क फॉर 24 hours, just make sure you work for 24 hours, don't come back saying that I can't do it. Long hours is not something that I'm advocating you should do, but sometimes you're required to. Don't be hesitant, don't take a back foot कि नहीं होगा. But coming back to your question, तेरा question क्या था, मैं भूल गया. हाँ बोलो. Hello. Yeah, so my question was, when you just first joined this industry, what were your expectations from the industry? Means how far could you go? Means how much did you expect yourself to go? Yeah. So like I said, when I joined, I had no expectations out of the industry or myself. It was the first year I remember. I thought front office is a very nice
department to be in because you get to wear a suit, a nice tie, polished shoes, you kind of look good, maybe that's the thing. But when I started doing my food production kitchen trials, practicals and theory, I started to realize that I have a very deep interest with food and cooking. I don't know why, but I enjoyed it. So I started taking extra interest in food. तो ये होता था जब हम थ्योरी करते थे फ्रंट ऑफिस की, तो मैं अच्छे से करता था कि मुझे उसमें भी इंटरेस्ट था. लेकिन जब फूड प्रोडक्शन प्रैक्टिकल होता था, इस गर्मी में हम लोग जब काम कर रहे थे अवन के आगे, गैस के आगे, पसीना भी आ रहा था, तो मुझे थकान नहीं लगती थी, मेरे को मज़ा आता था सीखने में. So that's where I found my interest. And in my third year, then finally I said, I think I'll become a chef. And at that point of time, chef was the most disastrous career that you can think of. Because you'll be behind in a kitchen, you were not then even allowed to come in the front. Manager was the face, he would talk, he would say things. Chef was somebody who is there, who will cook food, and that's about it. And usually, a lot of kitchen people at that time were people who never went to school also. They couldn't read or write. So it was the moment you would go in the front of the house, is very polished people, back of the house, somebody just dropped the ball. But I still did it because I enjoyed it. मैंने ये नहीं देखा कि करियर बनेगा नहीं बनेगा, पैसा बनेगा नहीं बनेगा, जीएम बनोगे नहीं बनोगे. I said कि यार मुझे मज़ा आता है, चलो करते हैं इसे. So sometimes you follow your heart, it works. Like quote आती है ना Instagram पे, follow your heart, sometimes it is true. It becomes true for you at some point or the other. So that's how it went for me. Who else? Anji, ma'am. Somebody give her the microphone. Good afternoon, sir. Good afternoon. I am Shonai Devnath. So, similar to your story, my parents, they don't want me to do hotel management. They are terrified of this area. So, can you suggest me? They told me, "Mat ja, kaam karwate mat dalenge." So, some comforting words that I can tell them so that they don't worry about me. देखो, quiet guys, quiet, especially the ones who are standing. You're talking a lot. Quiet. What's your name? Sorry? Shonai. Okay, Shonai, have a seat. देखो, first of all, that's a very parental instinct to protect their kid. Their sweet little, darling little, tiny little daughter all of a sudden has grown up and now she's going to college. And वो उस बेचारी से इतना काम कराएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे. So it's a very parental instinct that kicks. And it'll happen to all of you when you become parents. Best is that they should see you enjoying it, taking the subjects seriously. No amount of words can give them comfort. It's like, you won't understand this, but as a parent, when you drop your kid first time to the school, once the kid goes tata bye-bye, you turn around and you start crying for some reason. Because you just can't imagine leaving your child in the care of somebody else. Now you are 18, they're just living in that world. धीरे धीरे हाथ खिंचता जा रहा है. So they have all sorts of anxiety. So you should be talking to your parents every day. Tell them what happened today. This is what we learned. This is what we did. 12 घंटे 14 घंटे मैं काम करके आता था, मम्मी पापा कहते थे करने क्या गया था, कहीं घूमने गया था ना, झूठ बोल रहा है. तो इनको विश्वास ही नहीं, उनका बेटा इतने काम भी कर सकता है, इतनी मेहनत कर सकता है. बट स्लोली ग्रेजुअली आई वुड डिस्कस माई डे. आई वुड टेल देम ये हुआ. तो मैंने देखा यार घबरा जाते हैं, अरे ये भी करना पड़ा, वो भी करना पड़ा. तो व्हेन आई वाज ट्रेनिंग आई वुड क्लीन पब्लिक टॉयलेट्स इन द होटल, WCs, गैस नीचे वो पोर्च है, वहाँ पर डांगरीज पहन के घिसो एंड देन झाड़ू मार के पानी निकालो. आई हैव डन द सेम. अब मेरे को अभी भी कोई बोल देगा, आई विल स्टिल डू इट. बिकॉज इफ आई एम वर्किंग फॉर अ प्रॉपर्टी और अ रेस्टोरेंट और अ होटल, आई वर्क लाइक कि मेरे पापा की है, मुझे इसको क्लीन रखना, मुझे इसे ठीक रखना, मेरे को कोई शर्म नहीं है. एंड सूनर दे विल मैच्योर मोर knowing that you are okay with it. If you are okay doing something, they'll be okay. The day you complain, the little princess complains कि आज ये हो गया, मेरा हाथ टूट गया, ये हो गया, they'll go furious.
So share your day and give them certain confidence that I'm fine, I'm a grown up, I can handle myself. And आप कोई भी फील्ड में चले जाओ, इस फील्ड में आपको अच्छा आप कह रहे हो कि सफाई कराते हैं, भाई हमारे देश का मोटो है सफाई, स्वच्छ भारत। जब प्राइम मिनिस्टर झाड़ू उठाकर स्ट्रीट साफ कर सकता है, तुम अपना वर्क स्टेशन नहीं साफ कर सकते? इसमें कोई शर्म वाली बात थोड़ी ना, कोई शर्म वाली बात है क्या? जब देश का पीएम कर सकता है तो हम क्या चीज़ है भाई? एंड वेयर इज द हार्म? वी शुड बी प्राउड ऑफ दिस। इज वन थिंग, यू नो, समटाइम्स वी टेक इट रॉन्ग कि हम सफाई कराएंगे। बाबा हमारे देश को सफाई की जरूरत है। वी नीड पीपल टू फील प्राउड ऑफ दैट वी आर क्लीनिंग आवर स्ट्रीट्स। आप बाहर जाते हो ना, कुछ ऐसी कंट्रीज हैं, दे फील वेरी प्राउड कि मैं सड़क साफ कर रही है मैंने। इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड, चाहे सड़क है, चाहे पब्लिक यूटिलिटीज हैं। गुरुद्वारे, वीर जी गुरुद्वारे जाते हो, कोई बंदा अरबपति हो करोड़पति हो, झूठी प्लेटें जूते चप्पल सब उठा के रखता है, उसको तो कोई नहीं बोलता। क्यों? आस्था है ना, मन से सेवा कर रहे हैं ना, काम भी तो वही है कि नहीं है? बस फिर क्या प्रॉब्लम है? बताओ उनको, ये बात बोलो जरा। मंदिर में भी हम करते हैं, वैसे गुरुद्वारा इज द बेस्ट एग्जाम्पल, बिकॉज मैंने वहाँ पे देखा है कोई भेदभाव नहीं, चप्पल भी उठाएंगे, जूते भी, झूठे बर्तन भी साफ करें, सब करेंगे और सब मन से करते हैं। उससे बढ़िया कोई वो है ही नहीं यार। मतलब तो क्या हो गया, सफाई करनी है तो क्या हो गया, टॉयलेट भी साफ करते हैं, किचन भी साफ करते हैं, हर चीज़ साफ करते हैं, तो क्या हो गया? व्हाट्स द बिग डील अबाउट इट? और दसो। हाँ जी, Good afternoon, sir. Good afternoon. I'm Niharika Shao. निहारिका Shao. अच्छा, जैसे कि मैं 12th मुंबई से किया था मैंने, एंड आपने अंजुमन कॉलेज का नाम सुना है? जी। सो वहाँ से कुछ विजिटर्स आए थे, उनके प्रिंसिपल एंड ऑल। सो हमारी पूरी कॉलेज में, मैं विवेक कॉलेज से, विवेक विद्यालय फ्रॉम मुंबई, एंड वहाँ पे ऐसा ही क्राउड था समथिंग। सो पूरे क्राउड ने मुझे, उनके प्रिंसिपल ने पूछा, मुझे नहीं सबसे पूछा कि यहाँ पे किसको होटल मैनेजमेंट करना है, तो किसी ने हाथ नहीं उठाया एंड मैंने हाथ उठाया, तो बोले ओके। तो वो पूछे मुझसे कि आपको क्या करना है, तो आई सेड मुझे शेफ़ बनना है। तो बोले शेफ़, बेकरी शेफ़? बोली नो शेफ़ जो किचन में काम करते, कॉन्टिनेंटल्स मतलब खाने बनाते, वो वाले शेफ़, बेकरी शेफ़ नहीं। सो और भी मैंने बहुत सुना है कि जैसे अगर लड़की कोई होटल मैनेजमेंट घुसती है तो वो सिर्फ फ्रंट गेट या F&B या फिर HR के लिए ही करती है। क्या लड़की लोग शेफ़ के लिए नहीं बने ऐसा कुछ, या शेफ़ के लिए बने तो सिर्फ बेकरी सेक्शन के लिए बने, ऐसा कुछ है? बिल्कुल भी नहीं है। आप डिफाइन करो कि आपको क्या करना है। क्योंकि मैंने सबसे यही सुना है, शेफ़ मतलब बेकरी शेफ़। इफ अ नहीं। गर्ल ऐसा आए तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यू डिसाइड। आई विल गिव यू सो। अच्छा, माई फर्स्ट एग्जीक्यूटिव शेफ व्हेन आई जॉइंड वाज शेफ नीता नागराज। शी वाज अ लेडी। क्योंकि सबको लगता है हम लोग उस गर्मी में खड़े नहीं हो सकते। हाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं। मैं वही से बता रहा हूँ, माई एग्जीक्यूटिव शेफ, मेरा बॉस जो सुपर बॉस, एंड शी वाज द ओनली वुमन इन द एंटायर किचन ब्रिगेड ऑफ 150 शेफ्स। शी वाज द टॉप बॉस। ऐसा आपने बोला, राइट? मैंने बोला नहीं, यही हुआ। मैंने सबको बोला है, बट कोई मेरी बात पे विश्वास नहीं अच्छा, करता। मैं समझ गया आपका सवाल, अब मैं समझ गया। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट पीपल ऑलवेज वांट टू पुट other people in a box where they think they should fit, where they think they are comfortable viewing them as, अच्छा लड़की है, अच्छा शेफ बनना है, हाँ बेकरी पैंट्री में, फिर धीरे धीरे अच्छा फिर ट्रेनिंग में चली जाइए HR में, ये तो ऐसा ही होता है। बट यू डिफाइन द बॉक्स, आप चेंज कर दो। एक नहीं, ऐसे अनेक एग्जाम्पल्स है। ITC की एग्जीक्यूटिव शेफ इज अ लेडी एंड शी हैज सच अ कमांड। थर कांपते हैं जब वो बोलते हैं दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, दिस हाउ इट हैज टू बी। तो आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट दैट माई फर्स्ट बॉस was a lady, was a woman, and very strong woman, like very strong। अच्छे लोग उनके आगे नहीं टिक सकते थे। सो यू डिफाइन, कुछ नहीं फर्क पड़ता, आपको जो पसंद है आप करो, बाकी आप एक बार करोगे यू बिकम द एग्जाम्पल, खत्म। थैंक यू। हाँ जी,
माइक दो। वो ना दरवाजे खोल दो थोड़े, वरना ये ह्यूमिड होता रहेगा। जस्ट ओपन द डोर्स। Good afternoon, Chef. Hi. My name is Shubhankar Ram, and I'm very much excited seeing you just in front of me. And I want to share experience of mine, sir. Yeah. So, sir, I guess you know lockdown has taught us many different things, many aspects of lives, and like when lockdown hit, and myself, I'm personally a very extremist kind of boy. I like to explore, adventure, things like that. And lockdown made me like pressurized in the home. So I was very much kind of depressed. So then just when the lockdown started opening, I love to cook food, and I approached my mother that mom, I want to like start a small business by myself because right now I really don't want to sit back at home. So just in front of our house only, I set up a small stall of a tandoori, and my father loves to eat tandoori, so I used to cook tandoori a lot in my house. So and my the very first day, I'm really very happy to share with you this. The very first day when I opened my stall, I was having 3 kilos of chicken. And I opened my shop at 5 p.m. By 6:30, I was sold out. Very good. And by the end of 3 months, which was coming to be the Durga Puja last year, I was processing near about of 60 kilos of chicken daily. Very nice. And How old are you? I'm 21, sir, right now. Very good. And I was really very happy with that. And due to some whatever reason, I had to stop that business. And one day, my dad came to me and he was like, "You are earning so much from this. Do you really want to continue doing like this, the stall only?" And I was like, "No." Then my father told me, he made me sit and he made me understood one thing. See, just by some recipes and with your confidence, if you can sell this much chicken, 50 kilos, 60 kilos chicken, you could be doing great in, like, if you learn more in this industry, right? So that's why I'm here in hotel management. Very good, very I want good. to learn a lot more. So my question to you now, sir, is, today's the second day. So far, what I understood, that hotel management is just the name of the course. We really are into the hospitality industry. We can work in the airlines, we can work in the railways, we can work in cruise, and many other aspects. And the last that comes is the entrepreneurship. So I just want to ask you, Chef, how can I do good in business aspect through this hotel management? I'll answer. Guys, just open the door, please. The last two chaps, open the doors. Yeah. If there is a stopper, put a stopper. Hold it or just put a foot there. It's comfortable. Perfect. अब इनका इतनी लंबी कहानी का सार ये है कि after hotel management, can I pursue entrepreneurship? Can I open my own business? Absolutely. उसके लिए एक चीज़ आती है, which is called नौकरी. नौकरी करो. I'll tell you what. जितनी मिस्टेक्स करनी है उस पर कर दो. तुम्हारा क्या लगा है? तुम अपना बिजनेस खोलोगे, ठोकर लगेगी, सीखोगे, उससे रिकवर करोगे. Give 5 years to an industry where you want to work. You will have decent amount of skill to go back and do what is right. You would know कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए. So it's easy and somebody else's expense. No? Somebody is making sure that you come, he pays you and it's okay, mistakes, so sorry. As a fresher, the expectation is कि आप sorry बोलोगे. That's it. So experience counts. हर जगह. बहुत अच्छा. हाँ जी. Good afternoon, sir. Hi. My name is Bhushan Kumar. My name is Bhushan Kumar. Sir, being a hotelier, I want to know that there are many pros and cons. As you know, there are cons also. But how to overcome that cons? As you made food Veda, so I want to know the secret Veda of how to overcome that. Yeah, there is no one solution. आपका attitude will define the rest of your life. अब आप, as of now also, I'm sure you face with certain problems and you think about a solution, right? You hit a roadblock. अगर roadblock hit करोगे और बैठ जाओगे हार मान के तो गए काम से. I'll tell you how it works, and especially in hotels it will work.
ये क्या, ये छोटा सा लकड़ी का पीस है, ये 100 ग्राम का होगा, राइट? 100 ग्राम कोई वेट होता है? ये बोझ है तुम्हारे लिए? है? किसी के लिए उठाना है यार, बहुत बड़ा बोझ है, क्या पकड़ा दिया। वर्सेस मैं वो CPU दे देता हूँ जो 5 किलो का होगा। टेल मी, बोझ है 100 ग्राम का ये लकड़ी, अगर मैं तुम्हें पकड़ने को बोलूं? दिस साइड है, लेकिन ये बन जाएगा अगर इसको मैं बड़ी देर तक पकड़ूंगा। मैं इसको अब ऐसे में पकड़ने को ऐसे पकड़ता हूं, आधा घंटा में, 1 पौना घंटा में ऐसे पकड़ लूंगा। उसके बाद ना मेरा हाथ नम होना शुरू होगा, झंझनाहट होगी, बिकॉज ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रही। तो ये 100 ग्राम बहुत हैवी लगेगा, और अगर मैं ये 3 घंटे तक ले गया तो मेरे को पूरे आर्म में दर्द होगा, और उसके बाद ऐसा। तो ये 50 ग्राम या 100 ग्राम की चीज़ जो बिल्कुल भारी नहीं है, ये कितनी भारी होगी? हुई? नाउ कंसिडर दिस एज योर प्रॉब्लम्स, योर रोड ब्लॉक्स, योर कॉन्स। अगर तुम कॉन्स और रोड ब्लॉक्स को थोड़ी देर सोचोगे, विच इज़ ह्यूमन यार, सोचोगे ना कि है यार मैं फंस गया, मैं ये करूँ, मैं आई एम इन अ फिक्स, मैं तो अटक गया, सोचो, एंड देन मूव ऑन। कुछ प्रॉब्लम्स तुम सॉल्व कर पाओगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाओगे, वो वहीं की वहीं रहेंगी, बट मूव ऑन। इफ यू गिव योर अटेंशन टू दैट, थोड़ी देर और इट विल स्टार्ट वेइंग यू डाउन, थोड़ी देर और तुम डिप्रेशन में आ जाओगे। अगर बहुत देर ये 50 ग्राम की प्रॉब्लम भी तुमने पकड़ ली, और ये 50 ग्राम की एक है, ऐसे 50-50 की 50 रोज आएंगी इस इंडस्ट्री में। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस थ्योरी, जितना तकलीफ़ों को कम समय दोगे, अपने दिमाग में जगह दोगे, उतनी जल्दी तुम आगे बढ़ोगे। जितना वहाँ पे अटक गई, इट विल वे यू डाउन सो बैड कि वो छोटी सी प्रॉब्लम विल मेक यू टोटली हैंडीकैप्ड। दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। व्हाट एल्स? हाँ जी, कैन आई हैव सम वाटर? Can I have some water, please? हाँ, पूछो जी सवाल। गुड आफ्टरनून सर। Hi. माई सेल्फ अनन्या बख्शी। सर, जैसे ही आपने कहा था, एक्चुअली मेरे HS एग्जामिनेशन पे मुझे 95.2% मिला था। वेरी गुड। सो माई थैंक यू ऑल। सो एज यूजल माई पेरेंट्स, मतलब होटल मैनेजमेंट सुनते ही सबको लगता है कि वो होटल में जाकर वो किचन का काम करते होंगे। सो माई पेरेंट्स मतलब नहीं मतलब नहीं। इवन आई एडमिटेड इन दिस कॉलेज, सो स्टिल नाउ दे आर नो, दिस इज़ नॉट फॉर यू। इवन दे प्लान फॉर, मैंने उसका प्लान था कि मैं जियोग्राफी ऑनर्स लेकर हायर स्टडी करूँ, बट मेरा वो प्लान नहीं था। आई वॉन्ट टू टेक अ चैलेंज। सर, आई नो दैट देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर हार्ड वर्क इज़ ओनली थिंग, बट आई कांट कन्विंस देम, and I am really depressed for this. Still, even I got admission in this college. So, sir, can you please give me some tips that I can convince them and I can grow in this industry? Have they been to the college? Huh? Have they been to the college? Yes, sir. Have they met the dean? Yes. Make them meet again. Sorry, sir? Make them meet again. They are the ones who will convince you. They are the ones who are teaching you. They will convince your parents that this is a brilliant stream. Look at the amount of people and kids who have joined. They will show them the kind of people who have come out of this college and done so well in life. They will convince your parents. You can try, but like I said, you'll always be the darling daughter. Oh, ये तो बच्चे, इसको तो कुछ नहीं पता, ये तो अभी हमारी तो ज़िंदगी गुजर गई, टूटी टीटी. So they're just worried. The day they see you happy, they'll be fine. They'll drop the ball. They'll be like, okay, our kid is fine, it's fine. It's just a matter of time. Sometimes just let things be. छोड़ दो उनको. You don't have to convince them all the time. You're a grown up. You want to do this, you want to do this. Simple. Actually, sir, मतलब at the end of the day, you have to return into your family. Of course.
So they can't understand me and I can't convince them. Because they are a different era, you are a different era, and this is not your problem, this is everybody's problem. आपके कितने लोगों के पेरेंट्स आपको बिल्कुल हाँ जो तू कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है, जो तू कह रही है बिल्कुल सही कह रही है, ये अच्छा सब कैसे हैं, बिल्कुल कोई मना नहीं किसी बात की, अरे एक्सचेंज कर लो मेरे पेरेंट्स, मेरे को तो अभी भी बोलते हैं, डोंट वरी, I know you have to go back. That's why I'm saying the principal, the dean is the best person to convince them. Get them over here. Okay. And महीना हो जाता ना, get them to your practical classes. Take them to your theory classes. I'm sure they'll be more than happy to have them for, let's say, a session, 1 lecture, 2 lectures to see what this course is all about. You'll be learning, you'll be sharing. That's why I said ना, daily अपने parents से share करो कि आज ये किया, आज ये किया, ये किया, ये किया, ये किया. They'll get an understanding of how things work. ठीक है सर, थैंक यू. Hello. Sir, I am Swastik Agarwal. My question for you is, मैंने YouTube में रिसर्च वगैरह किया था कि शेफ़ बन के अभी आज के डेट में इंडिया में और अब्रॉड में क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है. तो मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स विच वर शेफ्स दे टोल्ड मी डैट कि अब्रॉड में बेटर पे मिलता है, बेटर आपको अंडरस्टैंड मतलब अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी मिलता है. तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इंडिया में आज के डेट में अभी भी कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो फ्लरिश कर सकता हूँ मैं अपने आप को उधर बेटर. YouTube पे गए थे, मेरा चैनल देखा? नहीं सर. फिर फायदा नहीं, मैं तेरा जवाब अब आया हूँ तो अपने चैनल के कुछ तो सब्सक्राइबर्स बढ़ा के जाऊंगा. ओके ओके, आई विल सब्सक्राइब यू सर. सब्सक्राइब करा है तूने? आई विल सब्सक्राइब यू सर. अभी करो, कर दे रहा हूँ. फिर उसका जवाब दूंगा. ओके. 4 साल से सब्सक्राइब किया हुआ है. सब्सक्राइब किसने किसने नहीं किया मैं देख लिया, तुम्हारी शक्लें मेरे को पता चल गया है. YouTube @Kunal Kapoor KPUR, सब्सक्राइब नाउ. कुछ तो फायदा हो. सॉरी, थैंक यू. ऑलराइट, कर रहा हूँ सर, कर रहा हूँ. कनेक्शन बड़ा स्लो है तेरा, मैं जवाब नहीं दूंगा जब तक तो करेगा नहीं. यार you know वो कहावत है ना, द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन अदर साइड ऑफ द फेंस. दूर के ढोल सुहाने. सर सब्सक्राइब यू. थैंक यू सर. ओरिजिनल कुणाल कपूर ना, कोई किसी को और को तो नहीं कर दिया? नहीं नहीं. एक बढ़ गया, मेरे को यहाँ पे मैसेज आ गया, वन मोर. ऑल राइट, जब फ्री हो जाओ प्लीज सब्सक्राइब. अच्छा, सिट डाउन. बाबा, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन अदर साइड ऑफ द फेंस ना. बाहर की कंट्री, बाहर तो पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, भूटान भी है, श्रीलंका भी है. और श्रीलंका पाकिस्तान की तो इकोनॉमी टैंक कर गई है. यूरोप को देखो, यूरोप की इकोनॉमी इज इन डोल्ड्रम्स. तो कुछ ऐसे कंट्रीज होंगे जहां पर आपकी लाइफ इज बेटर, लाइफ स्टाइल इज बेटर. ब्रिलियंट. इफ यू थिंक यू वांट टू परस्यू दैट कंट्री, गो हेड. ब्लाइंडली ये नहीं कि बाहर की कंट्री में, बाहर की कंट्री में तो काला पानी भी आता है, वहां थोड़ी ना करना चाहोगे. काला पानी इज एन एग्जाम्पल कि मतलब ऐसी भी कंट्रीज है विच आर वेरी बैड, दे विल पे यू वेरी वेरी वेल, बट दे आर वॉर टोन कंट्रीज. द अदर डे कुछ तो था लेबनान में, somebody said truck driver is getting 4 lakh rupees a month or something like that, because या वहाँ पे प्रॉब्लम चल रही हैं, लड़ाई चल रही है, कुछ ना कुछ चल रहा है. सो बाहर की कंट्री इज़ वेरी वेग. पिक अप अ कंट्री इफ यू थिंक यू लाइक दैट कंट्री, गो हेड. लेकिन इंडिया में इतनी अपॉर्चुनिटी है यार. हमारा मेक इन इंडिया जो कैंपेन है उसकी वजह से कितनी जॉब्स हैं. सर्विस इंडस्ट्री उसकी वजह से कितनी चल रही है, क्योंकि जब तुम्हारी इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी सेक्टर, मेक इन इंडिया बनता है, आपके होटल एंड रेस्टोरेंट एंड एलाइड इंडस्ट्री भी तो ऊपर आती हैं. आज की तारीख में इतनी डिमांड है. सो हिंदुस्तान में भी बहुत अच्छी डिमांड है, हिंदुस्तान में भी बहुत अच्छे करियर ऑप्शंस हैं, और बाहर भी हैं. बाहर भी सिलेक्टिव. आपको नेक्स्ट टाइम यू गूगल ना, तो गूगल के विच कंट्रीज आर द बेस्ट फॉर शेफ्स,
नॉट वेगली के बाहर की कंट्री में, बिकॉज लॉट ऑफ वीडियोज आर जस्ट फ्लैशिंग न्यूज़ ना कि इतने मिलियन मिलते हैं, आपको ये मिलता है, आपको किसने देखा यार? इट्स वेरी डिफिकल्ट आउटसाइड ऑल्सो, बाय द वे, वेरी वेरी डिफिकल्ट. इट्स नॉट ईजी टू सेट योर सेल्फ अप, uproot from one country where you're born, where you used to, and go to a completely new country. It may work, it may not work. कितने लोग तो वापस आ जाते हैं कि नहीं यार वो इंडिया ही ठीक है, और कई लोग वहाँ पे सेटल हो जाते हैं कि इंडिया के वो जो जगह गए उससे बेटर कुछ नहीं है. सर आई हैव अ क्वेश्चन. हाँ, माय नेम इज़ रुद्रोनील पाल. सर बोला था कि जो आप शेफ से मास्टर शेफ कैसे बने, मतलब आपका एक्सपीरियंस तो शेफ से मास्टर शेफ के बना. मास्टर शेफ इज अ टाइटल है, मतलब शेफ्स और मास्टर शेफ में कोई फ़र्क नहीं है. इट्स अ टाइटल. थैंक यू सर. हाँ जी. Hi, chef. Sorry. Hi, chef. I am Swasti Bhadra. Guys, quiet. You are my inspiration. Since I follow you, I know that I will be a chef. Thank you. So my question is, which cuisine you like the most, and what is the main thing we should taken care of to to cook? Me? No, we. Which is the best cuisine for you? No, for me, and yeah. what you should be taking care Yeah, of yeah, for yeah. getting Cooking. into this trade? Cooking. For Yeah. cooking. Okay, very nice. Look, I enjoy cooking. I don't have a favorite cuisine. Last so many years I've started enjoying researching on traditional Indian food. मुझे उसमें बहुत मज़ा आता है to look at our history, community, culture, our trends, क्या चीज़ें मिलती थी, कैसे होता था, नानी मामी दासी मासी जो बनाती थी, old forgotten recipes. So I enjoy doing that. But again, I'm not bound by, guys. So I enjoy cooking. For me, it doesn't matter कि कौन सी stream है क्या है. हाँ, in order to become a chef, the most important thing that you have to do is you have to cook yourself. रेसिपी आपको मिल जाएगी, YouTube है, आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा. एंड ट्रस्ट मी, यू विल फॉल्टर मेनी टाइम्स. वो रेसिपी में बहुत तरीके से भी बताऊंगा ना, उसमें भी आप गलती करोगे क्योंकि अभी आपके हाथ बैठा नहीं उस पर, विच इज़ फाइन. कभी कभार ऐसा होता है, मैंने एक दो बार ऐसे डिशेस टेढ़ी मेढ़ी ऐसे सीखे. कैसे सीखे? मैंने 10 बार बनाई, 10 बार एक नई गलती कर दी. एक बार नमक ज़्यादा हो गया तो समझ आया अच्छा ये नहीं करना. फिर एक बार बहुत ज़्यादा कड़वा टेस्ट हो गया, अरे ज़्यादा पका दिया, अच्छा ये भी नहीं करना. फिर ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं करके मेरे को ये पता चल गया 10-15 बार ख़राब करके डिश को कि क्या नहीं करना. तो वो चीज़ें नहीं करी तो ठीक हो गया. सो समटाइम्स योर मिस्टेक्स आर योर बिगेस्ट टीचर, एंड स्पेशली इन द वर्ल्ड ऑफ कुकिंग. more mistakes you make, the better chef you become. But the mistakes that you do have to be from day one. Make mistakes, don't be afraid of making mistakes. But you can't be making grave mistakes or repeating them. Even as today, I make mistakes. हो जाते हैं गलती. But एक बार गलती होती है, अब मेरा ना टर्न अराउंड टाइम उस गलती को करेक्ट करने का वो इतना तेज हो गया है कि लोगों को पता नहीं चलता मैंने गलती करी. They think that's a process. ऐसी बनता है. तो वो आपके ऊपर ना कला चढ़ जाती है. Then it just becomes an extension of you. तो जितना ज़्यादा आप कुकिंग कर सकते हो उतना ज़्यादा हैंड्स ऑन कुकिंग करो. चाहे कुछ भी बनाओ, घर पे बनाओ बेशक, बट बनाओ. And then start with some easy recipes, with a little more complicated recipes, and then very extremely complex recipes. एंड वो जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स रेसिपीज बनाते जाओगे ना, वो सारी इजी वाली कैटेगरी में आती रहेगी. क्योंकि कोई रेसिपी कॉम्प्लेक्स नहीं होती, हमारा दिमाग कहता है कॉम्प्लेक्स है. नहीं यहाँ पे भी नहीं आ रही. मैं भी यहाँ पे एक पीछे, थोड़ा पीछे.
Maybe. All right. Last question. Last. हाँ आप पूछो. पूछो. Good afternoon, Chef. Myself Aditya Chatterjee. Hi. So my question is, so what is Michelin stars and why one is given that? I want Why? To know why that thing is given to a chef? I Oh, want to know okay. that. Okay, sit down. Everybody's heard of Michelin star? Very popular awards for restaurants and chefs. You've heard the company Michelin Tire? वो जो एक बना होता है ना वाइट कलर का लाइक अ गोस्ट, वो मिशलिन जो टायर्स बनाते हैं कंपनी, उन्होंने एक गाइड बुक निकाली थी आज से कई साल पहले फ्रांस में, जहाँ पर वो ट्रक ड्राइवर्स को बताते थे कि कहाँ कहाँ उनके हाईवे पे खाने की जगह है, कहाँ कहाँ सर्विस स्टेशन हैं, कहाँ कहाँ मोटेल्स हैं, कहाँ कहाँ अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं. और धीरे धीरे करके वो मिशलिन टायर्स की ही एक मिशलिन जो पैम्फलेट होता था वो गाइड बन गई एंड फिर उन्होंने उसके अवार्ड्स बना दिए. तो आज की तारीख में वर्ल्ड में वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस फूड अवार्ड्स फॉर अ रेस्टोरेंट एंड शेफ हैज़ बिकम मिशलिन स्टार्स और मिशलिन अवार्ड्स. जब वो अवार्ड देते हैं वो स्टार देते हैं, तो इट बिकम्स मिशलिन स्टार. और उन सारे अवार्ड्स की कलेक्शन हर साल जब एक किताब में जाती है उसे गाइड बोलते हैं, मिशलिन गाइड. आई होप दैट आंसर्स. इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस अवार्ड टू हैव. हाँ जी. ऑलमोस्ट लास्ट क्वेश्चन. गुड आफ्टरनून सर. सर जैसे होटल मैनेजमेंट की बहुत लाइन है, तो मेरा यही क्वेश्चन है कि आज की सिचुएशन में कौन सी लाइन में ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है? बिकॉज ऐसे बहुत सारे होते हैं जिसमें ज़्यादा होता है और कुछ मतलब डिफ़िकल्ट होते. सो पता क्या, आई डोंट वॉन्ट टू आंसर दिस वन. आपका भी पहला दिन है, किसी के कहे पे कि इसमें है जाओ, वो मत जाओ. इंडस्ट्री इज़ फास्ट चेंजिंग. जब मैंने ज्वाइन किया था सब ने बोला था बेवकूफ़ है, किचन में फ्यूचर ही नहीं है. एंड दे वर राइट, दे वर वेरी राइट. इट इज़ जस्ट दैट आई वॉज वेरी स्टबन दैट मेरे को पसंद है, कोई बात नहीं, देखी जाएगी. सो हाउ थिंग्स चेंज. अगर मैं दूसरी जगह होता I would have missed this train. I wouldn't be standing here in front of you. So it's too early for anybody to guide you कि क्या सही है क्या गलत है. Okay. Go with the flow यार. Housekeeping to front office to anything you do. Okay. Thank you, matter. sir. अभी तो subjects अभी शुरू होंगे आपके. Last question. गुड आफ्टरनून सर. This is very very गुलाम last. अहमद. हाँ. सर मेरा सवाल ये था कि मतलब जैसे इंटरेस्ट एफएनबी में है और सर Quiet. That fan club. You all 3, 4, 5 please. सर मेरा इंटरेस्ट जैसे एफएनबी में, और मुझे अगर एज अ शेफ वो भी पसंद है, तो सर आपकी तरह पॉपुलर कैसे हो, मतलब दोनों में कमांड कैसे अच्छा हो? दोनों में कमांड किस में? एफएनबी एंड शेफ दोनों में, मतलब आपकी तरह पॉपुलर कैसे और आपकी तरह इतना मास्टर शेफ वाला कमांड कैसे है? मुझसे आगे जाओगे यार. मैंने तो बहुत लेट शुरू किया. आप लोग तो मुझसे आगे जाओगे. आपके पास और भी ज़्यादा साधन है, सोर्सेज हैं टू वर्क योर वे अप. बीइंग पॉपुलर इज फैंटास्टिक. सेलिब्रिटी कौन होता है? जिसे लोग सेलिब्रेट करते हैं. और उसको किस लिए सेलिब्रेट करते हैं? उसके किसी हुनर के लिए, चाहे वो एक्टर है, सिंगर है, डांसर है, म्यूजिशियन है, या शेफ़ है, या पेंटर है. तो अगर आप अपनी कला को ऊपर लेकर जाएंगे आप सेलिब्रिटी बन जाएंगे. और आजकल तो फॉर यू टू शाइन विद योर आर्ट मीडियम बहुत हैं. सिर्फ टेलीविज़न नहीं है, आपका फ़ोन है आपके हाथ में. दैट्स योर समटाइम्स द की टू सक्सेस. थैंक यू सर. ऑलराइट गाइस. अच्छा ये लास्ट, बस गर्मी नहीं लग रही? हेलो. हाँ, बाहर मौसम अच्छा, बारिश होने वाली है. Good evening, sir. My name is Shubhadeep Chaudhary. Sir, I want to ask you that, sir, actually after complete my courses, sir. Quiet guys, we're still here. Sir, currently now I'm pursuing in MBA in hospitality.
And sir, after complete the courses, India or abroad country, which is the better option to start the career in hospitality sector, sir? Please. In hospitality sector, Yes, career? sir. Yes, sir. जहाँ नौकरी मिल जाए. Sure. It doesn't matter. Country will not matter. What will matter is where you join and how much you learn. So if I learn in a small little restaurant, मैं ज्वाइन करता हूँ, मेरी सैलरी भी अच्छी नहीं है, लेकिन वो वहाँ पे मुझे सीखने को बहुत अच्छा मिल रहा है. वर्सेस यू जॉइन अ वेरी बिग कंपनी जहाँ पे तेरा सीखने का स्कोप ही बड़ा छोटा है, वो बेकार है तेरे लिए. सो इट्स नॉट अबाउट विच कंट्री, इट्स अबाउट व्हाट जॉब, हाउ मच इज द अपॉर्चुनिटी टू लर्न. स्किल है ना किचन. यस सर. एक दिन में नहीं आता, सालों लग जाते. तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द राइट प्लेस. समटाइम्स अंडर द राइट पर्सन कोई एक मेंटोर मिल जाता है, वो सिखाने को राजी है, तो उसके साथ लग गए. वो जहाँ गए उसके पीछे सर क्यों सीखने को मिला. ठीक है. थैंक यू सर. थैंक यू. Thank you so much guys. Wishing you all the very best. I hope lots and lots of success to each and every one of you. Sit down, बैठ जाओ. I wish you all the very best. Loads and loads of success to every one of you. Right? And you are the future, Baba, of the country, of the industry. So, once again, all the very best. I am here. Through the year, I'll keep meeting you. फिर एक बार प्रैक्टिकल में मिलेंगे, कभी कोई कहीं मिलेंगे. कॉलेज आना जाना लगा ही रहेगा हमारा. ठीक है? Thank you. I request sir kindly be on the stage. I also invite our principal sir and vice principal sir to come on the stage, please. Thank you so much, everyone. Please be seated. Please be here for 5 more minutes. Sit down. I also have more information to share with all of you. Please be here. I also request the volunteers to come up on the stage with plant potter and uttorios. A round of applause for everyone. A round of applause for Master Chef, Michelin star, Mr. Kunal Kapoor. A small token of love and appreciation from Guru Nanak Institute of Hotel Management.